Hello students, how are you? I hope you all will be fine and you are enjoying the video lectures in this lockdown period. So I Amit Kumar again welcome in IIT Manthan. So we are doing our chapter motion and we have done linear motion and circular motion. तो इस चैप्टर में हमने मोशन को पढ़ के थोड़ा ये पता कर लिया कि हाँ ये लीनियर मोशन है और ये सर्कुलर मोशन है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि लीनियर मोशन में हमें एक सिंगल या वन डायमेंशन में हम चल रहे हैं। ठीक है, आइदर वी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और वी आर मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, बट इन सर्कुलर मोशन वी हैव टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड फॉर मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ देयर शुड बी ए रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फोर्स, either it will be a centripetal force or it will be a centrifugal force. So these two forces are necessary to be required to move a particle or a body along a circular path of any radius. So moreover, in linear motion and circular motion there are certain terms which are having resemblance with circular motion. Like in linear motion we are having linear velocity, in circular motion we are having angular velocity. In linear motion we are having linear displacement, in circular motion we will be having angular displacement. In linear motion we are having linear acceleration, in circular motion we are having angular acceleration. But the difference is that in linear motion the linear displacement is in meter. हम जो भी चीज चलते हैं वो कैसे होती है, मीटर में होती है. But in circular motion, whenever a particle is moving on a circular path, it means it is moving by some angle. Angle means radian. So the unit of angular displacement will be in radian. As in linear motion, the unit of linear velocity will be meter per second. That is displacement upon time. That is meter per second. But in circular motion, the unit of angular velocity, that is omega, will be how much? Theta by t. Theta क्या होता है? Angular displacement divided by time, that is radian per second. So the unit of angular velocity will be radian per second. Similarly, in linear motion the unit of linear acceleration will be meter per second square, but the unit of angular acceleration will be radian per second square. So these are the similarities and the dissimilarities. This is called analogy between linear motion and the circular motion. Clear? So today we are going to do some mathematical interpretation. Like two terms are there. There are two quantities. One is dependent quantity and another is independent quantity. So the dependent quantity always depends on the independent quantity. It means whenever you are writing some equation or a mathematical expression, every expression is having dependent as well as independent quantity, and the equation is written in terms of dependent quantity. So dependent quantity should be in terms of independent quantity. It means if you are having y is equal to x, it means y is depending on x. तो it means जब मैं x में कुछ घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो मेरी y की वैल्यू में कुछ ना कुछ घटेगा या बढ़ेगा डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन. तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि what is differentiation, what is integration, means how you will change the values of the independent quantity on which some dependent value is dependent. So let us start. So there are two terms, one is differentiation, another is integration. So for example, y is a function of x. It means मान लिया मैंने कि y मेरा x का फंक्शन है. ठीक है, तो सपोज y is equal to x पर n आपको दे दिया. n is the power of the x. n कुछ भी हो सकता है. n can be 0, 1, 2, 3, whatever it is. So dy by dx, it means y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है. तो x की वैल्यू को जिस तरह से मैं मॉडिफाई करूंगा, बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, उसी तरह से मेरा y में चेंज नजर आएगा. तो व्हाट इज dy by dx? dy by dx is known as rate of change of y. It means y में कितना चेंज आया और किस रेट से आया. रेट का मतलब होता है टाइम. dy by dx will be the rate of change of y with respect to x. It means
y की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है x के हिसाब से वो कितना हो रहा है, वो क्या होगा। अगर क्वेश्चन ये दे दिया, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इस फंक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या है, दिस वन। सो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n एंड dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, वही पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और x की उसी पावर में से एक पावर घट जाएगी, ठीक है। तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन विल बी dy बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 आपको दिया हुआ हो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वही पावर आगे मल्टीप्लाई में और उसकी एक पावर कम, इट मीन्स क्या आ गया 4x क्यूब आपका dy बाई डी एक्स आ गया। इट मीन्स x की वैल्यू में चेंज करने पे आपका dy बाई डी एक्स कितना आया, 4x क्यूब आ गया। सो एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स हमने इसका एक बार क्या किया, हमने किया इसका एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसी का द्वारा फिर कर दूं तो अभी क्या है, ये dy बाई डी एक्स है, ठीक। तो फंक्शन क्या था, ये था। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स अगेन ऑफ dy बाई डी एक्स, इसे लिखूंगा। पहले क्या था, y था, तो क्या लिखा dy बाई डी एक्स। अब क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स कितना आएगा, ये 4x क्यूब है, फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो 4 कांस्टेंट है, 3 मल्टीप्लाई में आ गया, 4 इंटू 3, एक्स की पावर 3 माइनस 1 कितना आ गया 12x स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। देखो यहां पे डिग्री क्या है, 1 है, यहां डिग्री 2 है। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, और d square y by dx square will be second derivative of y with respect to x, is equal to कितना आ गया 12x square, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन आपका सपोज मान लो मैंने यही उठा लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4x क्यूब, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे मैं क्या निकाल सकता हूं, लिखता हूं उसको, dy इज इक्वल टू 4x क्यूब dx एंड इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया यहां पर 1 इंटू डी वाई, और यहां है 4 बाहर आ जाएगा, x की क्यूब डॉट dx, ठीक। अब जैसे आप इसको निकाल रहे हो, तो अगर मैं x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालने बैठूं, अगर मैं x की पावर n dx का इंटीग्रेशन निकालने बैठूं, तो क्या होगा, फॉर्मूला है x की उसी पावर में एक ऐड हो जाएगा, और जो ही पावर ऐड होके नीचे डिवाइड में आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक। जैसे यहां पर क्या था, x की पावर n का हमने निकाला, डिफरेंशिएशन क्या आ गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, वही पावर मल्टीप्लाई में और उस x की पावर एक कम हो गई। अब जब हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो उसकी वही पावर में एक ऐड कर दिया, और ऐड होके वो पावर कहां आ गई, डिवाइड में आ गई। देखिए पावर यहां मल्टीप्लाई में, इसमें एक ऐड होके पावर डिवाइड में आ गई, यहां पावर घटा होगी, यहां पावर ऐड होगी, ठीक है उल्टा। तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक। तो आइए देखते हैं यहां पर। तो ये क्लियर है आपको, इसको रब कर रहा हूं। अभी मैं एकदम एग्जांपल करा दूंगा आपको, मैं उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमने अभी x की पावर 4 का क्या निकाला था, dy बाई डी एक्स निकाला है जब, तो वो कितना आया था
4x की पावर 3, x की पावर 4 था हमारे पास, हमने इसका क्या निकाला, ये y था हमारे पास, तो इसका dy/dx कितना आया, 4x³ आ गया। अब हमें पता है कि ये इसका उल्टा है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि यही देखते हैं dy/dx इज इक्वल टू 4x³। इट मीन्स वी कैन राइट dy इज इक्वल टू 4x³ dx। इंटीग्रेशन सिंबल लगा दिया, इसको लिखा मैंने 1 dy इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है x³ dx। अब देखिए जब ये y है तो इट मीन्स इसको ऐसे लिख दूं, y की 0 dy 4x³ डॉट dx। अब देखिए x/n dx था, अब क्या y की 0 dy, तो क्या होगा y की पावर 0+1 इसके अकॉर्डिंग बाय 0+1 इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, x की पावर 3+1 3+1। ठीक है, तो क्या बनेगा y की 1 4 x की पावर 4/4, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू x की 4 आ गया। सी इट। इसीलिए आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, रेसिप्रोकल हैं। क्लियर है? तो अगर हमें किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन निकालना हो, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, देन जनरल फॉर्मूला इज n x की पावर n-1। जो पावर आपको दी हुई है वही पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और x की उसी पावर में से एक घटा देंगे। ठीक है, अगर फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या बनेगा, x की वही पावर में एक ऐड कर देंगे और वही पावर ऐड होके नीचे डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक, तो अब कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जिससे आपको रिकॉल बैक हो जाएगा। और जब भी हम फिजिक्स में रेट की बात करते हैं, इट मीन्स वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट टाइम। किसकी बात कर रहे हैं हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो नाउ वी आर ट्राइंग टू राइट ऑल द लीनियर मोशन क्वांटिटी एंड सर्कुलर मोशन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर लीनियर मोशन की बात करते हैं। लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन यहां पर है। तो लीनियर मोशन में सबसे पहले हमने पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस होता है, और इसको वेक्टर लगाया मीन्स ये वेक्टर है, ये एरो लगाया मीन्स वेक्टर है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, v will be equal to ds by dt। ठीक, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज द वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। तो क्या लिखूंगा इसको, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। ठीक, अब इसी से देखिए, इसी से अगर मैं लिखना चाहूं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकता हूं, ds इज इक्वल टू vdt। इंटीग्रेशन फॉर्म आ गया इसका, ये क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन फॉर्म। Similarly, dv
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए डी टी, दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर्म। ठीक है, कम ऑन टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में v की जगह होता है क्या, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू हम लिखते हैं थीटा बाय टी। यहां पर यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और यहां पर यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, और इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकता हूं इसको मैं डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ठीक है, फिर हम अल्फा को लिखते हैं ओमेगा बाय टी। यहां पर ए की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन। तो अल्फा लिखते हैं हम डी ओमेगा बाय डी टी। यहां से लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। क्या हो गया, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ठीक है, अब क्योंकि देखिए v की वैल्यू क्या है, डी एस बाई डी टी। अगर इसको मैं लिखना चाहूं फर्दर आगे, डी बाई डी टी यहां पर आ गया, v की वैल्यू कितनी है, डी एस बाय डी टी। क्या लिख सकता हूं उसमें, a विल बी इक्वल टू डी स्क्वेयर एस बाय डी टी स्क्वेयर। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज एक्सीलरेशन in terms of displacement. Similarly, alpha omega क्या है, so d by dt and this is d theta by dt, and we can write d is equal to d square theta by dt square. So this see here it is 1, here it is 1, here it is 2, here it is 1, here it is 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहना चाहूं लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं क्या, तो पहला मैंने वेलोसिटी की बात की, दूसरा मैंने एक्सेलरेशन की बात की, दूसरा मैंने एक्सेलरेशन की बात की। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन की क्वांटिटीज को किसमें लिखा है, डिफरेंशिएशन की टर्म में और इंटीग्रेशन के टर्म में लिखकर दिखाया कि ऐसा कुछ होता है। तो v को मैं क्या बोलूंगा, यहां 1 है, 1 का मतलब क्या होगा कि ऑर्डर 1 है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। सो वेलोसिटी इज द फर्स्ट derivative of the displacement. Similarly, angular velocity is the first derivative of the angular displacement. ठीक, यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, it is the first derivative of velocity, or you can say acceleration is the second derivative of displacement. यहां पर क्या है, angular acceleration is first derivative of angular velocity and also it is second derivative of angular displacement. क्या है, angular displacement. ठीक है, एक बार इनको देख लीजिए।
तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट। तो मान लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज रिटन इन ए इक्वेशन विद द दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 1/3t स्क्वेयर प्लस 16t प्लस 3। तो x यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और मुझे निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये मुझे क्या दिया हुआ है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, और मुझे निकालना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, v इज इक्वल टू ds/dt, ठीक। तो चेक कर लेते हैं यहां पर, तो v निकालना है, तो v क्या होगा यहां पर, v होगा dx/dt। तो ठीक है, लिख लेते हैं d/dt ऑफ 1/3t स्क्वेयर प्लस 16t प्लस 3। तो अलग अलग करके लिख देते हैं d/dt 1/3 कांस्टेंट है, तो d/dt ऑफ t स्क्वेयर प्लस 16 कांस्टेंट है, तो d/dt ऑफ t प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूं d/dt ऑफ t की पावर 0 कर दूं, 3 into 1 is 1, तो t में लिख दिया मैंने। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, dy/dx इज इक्वल टू n x की पावर n-1। तो यहां पर देखते हैं 1/3 कांस्टेंट है, t स्क्वेयर, तो 2 यहां आ गया मल्टीप्लाई में, और t की पावर 2-1 प्लस 16, 1 यहां आ गया मल्टीप्लाई में, और t की पावर 1-1 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 0 आ गया, t की पावर 0-1। सो 2 into 1/3, 2/3 t प्लस 16 t की पावर 0 प्लस 0 into something is 0, so 2/3 t प्लस 16, t की पावर 0 is 1। तो ये क्या आ गया मेरा, v आ गया। तो v क्या आ गया मेरा, एट टाइम t पे आ गया, और t कितना है मेरा 2 सेकेंड। तो v विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 2 प्लस 16, इट मीन्स v कितना आ गया, v आ गया 4/3 प्लस 16। तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू 52/3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर, देख लीजिए। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था कितना, 1/3 t स्क्वेयर प्लस 16t प्लस 3। तो v कितना आ गया, dx/dt होता है, बिकॉज v इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो d/dt ऑफ 1/3 t स्क्वेयर प्लस 16t प्लस 3, 1/3 ऑफ d/dt इंटू t स्क्वेयर प्लस 16 dt/dt प्लस 3 d/dt। इसको 1 की 1 को लिख लिया मैं t की टर्म्स में, t की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 1। ओके, फॉर्मूला इज ये nx की पावर n-1। तो t स्क्वेयर है तो 2 यहां पर आ गया, ऐसे n ही आया, n की जगह क्या है 2 है, x की जगह t है, तो 2 इंटू t की पावर 2-1 प्लस 16 t
n की जगह 1 है, 1 आ गया, t की पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 0, 3 इंटू 0 0, ये तो खत्म हो गया यहाँ पर। तो 2/3 t की पावर 1 प्लस 16 t की पावर 0 इज 1, क्या आ गया 2/3 t प्लस 16, v इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2 प्लस 16 एंड v विल बी इक्वल टू 4/3 प्लस 16 दैट इज 52/3। तो वेलोसिटी क्या आ गया 52/3 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी। मीन्स आपको कोई डिस्प्लेसमेंट आपको इक्वेशन में दिया हुआ हो तो आप उसकी वेलोसिटी इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, सो हमने आज किया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हमने चेक किया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं एंड हाउ यू विल फाइंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड हाउ यू विल अप्लाई दीज टू फंक्शंस और these two terms in solving the numericals when the question is given in the terms of equation। क्लियर है? ठीक, तो एक चीज देखिए, हमने ये निकाला अभी, ठीक, हमने निकाला v इज इक्वल टू 2/3 t प्लस 16। ठीक, मीन्स यहां वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी क्या होता है, अगर मुझे निकालना डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा v डॉट डी टी, क्या होता है v डॉट डी टी, s होता है, s क्या होता है v डॉट डी टी। ठीक है, तो s, तो इसको क्या कर दूंगा मैं इसमें ds कर दूं, तो ds का इंडिकेशन क्या आएगा s आ जाएगा, v dt इसको निकालते हैं, तो 2/3 t dt आ गया प्लस 16 1 इंटू dt आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे को y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हुआ है तो मेरा y क्या आएगा इसमें x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो देखिए 2/3 t की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 16 t की पावर, इसको 0 लिख दूं, t की पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, तो क्या आ गया 2/3 t स्क्वेयर बाय 2 कैंसल प्लस 16 t, तो क्या आ गया 1/3 t स्क्वेयर प्लस 16 t, ये आ गया s और प्लस सम कांस्टेंट होगा, तो s क्या था, यही था, s चेक कर लो। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन if the questions is given in terms of equation। So with this lecture is over, so kindly go through this video lecture. This is a very important video lecture as far as concerned to the application of the differentiation and integration in terms of equation, how we will find the certain quantities and the parameters by applying differentiation and integration। So take care, be safe, stay at home, thank you so much। So in today's lecture what we have done the revision of linear motion, circular motion, how to resemble one quantity with the another quantity, and how to remember the quantity which are having similarity in linear motion as well as circular motion। कौन सी क्वांटिटी हमारे पास सर्कुलर मोशन में सेम है और उधर सेम है, बस उनकी यूनिट डिफरेंट है, वो हमने बताया आपको। और हमने क्या किया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और हमने आपको ये भी बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और यहाँ हमने सोल्व करके भी देखा बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला। एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर दैट व्हेन वी आर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद टू अनदर क्वांटिटी, द आंसर if the answer obtained by differentiation and we are taking the integration of the answer,
देन वी विल गेट द क्वेश्चन सेम। अगर मैंने x की क्यूब का मैंने इंटीग्रेशन किया, सॉरी मैंने क्या किया, इफ आई हैव डन द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3, देन वी गॉट 3x स्क्वेयर। तो अगर मैं 3x स्क्वेयर का अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, x की क्यूब मिलना चाहिए। अगर आंसर वही आता है तो ही मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो विद दिस योर लेक्चर इज कंप्लीट। सो आई विल एडवाइज you people that 9th class is the basic class as far as concerned to foundation of the physics। तो फिजिक्स का ये चैप्टर जो मोशन है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत ही ध्यान दे के चीजें पढ़नी है। हर एक क्वांटिटी को ढंग से पढ़ना है, हर एक की यूनिट पता होना चाहिए, किसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है। तो ये भी मैं आपको एक दिन कराऊंगा सिस्टम ऑफ यूनिट, कि हाउ यू विल write the units in different type of system and how many system of units are there, and what is SI system, what is the unit of velocity and displacement in SI system, what is the unit of angular velocity in SI system. So we will also prepare a lecture for you people for only system of units and also some conventions, कि किस तरह से इक्वेशन को हम होमोजेनिटी निकालते हैं, किस तरह इक्वेशन आपकी सेम होती हैं। सो homogeneity of equation, how you will find that the equation is correct, उसको बोलते हैं correctness of the equation. So in one lecture we will complete that one. So today lecture is about differentiation and integration. I hope you will enjoy the video lecture, and also please go through this video lecture. Thank you so much. Stay at home, be safe, take care.